Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is all about visualization. So this is the second part of descriptive stats. हमने numerical जो statistics हैं उनके बारे में देख लिया था, which was also part of descriptive stats. Now we'll try to create some pictures from the same data. So as an introduction, first part of this lecture would be all about the description of different kind of graphs that we can make through R और data के उसकी different qualities, different properties, different characteristics, कौन सा graph किस situation में सही रहता है और some do's and don'ts also. Afterwards in the next lecture इंशाल्लाह हम लोग ये सारा काम इंशाल्लाह R के ऊपर जो है वो करके देखेंगे using the WHO and other data. So let's get started. So the first thing is why to have visualization, why to have these kind of pictures. Generally it's said that a picture is worth 1,000 words. So इसी तरह से instead of कि हम वो जो summary statistics लिख रहे हैं अगर हम उसी डेटा को पिक्चर्स बना के डिनोट कर सकें अच्छे तरीके से तो द मैसेज दैट इज़ relayed is much more powerful if the graph or the pictures are made in a really good manner. So generally visualization data जो है हमें क्या क्या चीज़ें allow करता है. So it allows us to discern the relationships between different variables, structure, distribution, outliers of the data, patterns in the data, behavior, dependencies and outcomes. And we'll see आगे जब हम description करेंगे different type के graphs की तो we'll see कि ये सारी चीज़ें कैसे हमें नज़र आ रही हैं. And they're useful for initial data exploration and for interpreting the model and for communicating the results. So interpret करना मॉडल को comes later. जब हम मॉडल पे आएंगे तो हम उसको देखेंगे, लेकिन जो बहुत ही पावरफुल चीज़ है वो ये है कि आप जो फर्स्ट टाइम आपके पास डेटा आता है तो उसको समझने के लिए लेट्स से उस डेटा के अंदर कोई 100,000 रोज़ हैं और कोई 30 के करीब कॉलम्स हैं. सो रियली कैन नॉट मेक एनी मीनिंग्स आउट ऑफ दोज जो भी न्यूमेरिकल या कैरेक्टर वैल्यूज़ जो उन डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स में लिखी हुई हैं. तो one of the very initial steps that you'll do is that कि आप उस डेटा को प्लॉट करके देखोगे and you'll try to find out कि what are the trends in the data. मॉडल को इंटरप्रेट करने में भी यूज़फुल होता है जब आप एक दफ़ा डेटा प्लॉट करते हैं और उसी डेटा के ऊपर अपना मॉडल भी प्लॉट करते हैं. हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे इस चीज़ की. तो हमें ये पता चलता है कि डेटा का ट्रेंड क्या मॉडल वो ट्रेंड कैप्चर कर रहा है जो कि डेटा के अंदर ट्रेंड है. And also pictures are really good for communicating the results. Non-technical, non-data analysts को अपना जो है मैसेज और या अपना एनालिसिस कम्युनिकेट करने में भी जो आपके विजुअलाइजेशंस हैं या पिक्चर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं. So there are many different type of plots and charts. Like हमारे पास यहाँ पे 2-3 डिफरेंट टाइप की प्लॉट सामने आपके बने हुए हैं. इनमें से एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे दिस इज़ अ पाई चार्ट जो वेरी फर्स्ट. सो इट इज़ इंडिकेटिंग कि 1998 में जो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल थे उनमें से कितने परसेंट किस फोर्स से ताल्लुक़ रखते थे, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड मरीन कोर. सो कितने परसेंट लोग जो है कौन सी फोर्स से ताल्लुक़ रखते थे. उसी डेटा को यहाँ पे एक बार चार्ट की फॉर्म में डिपेक्ट किया हुआ है. सो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ द टोटल फोर्स आई थी. यहाँ पे बेसिकली
एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं कि कैसे कैसे जो है एक्चुअल नंबर्स लाइक 492,000 या 363,000 दे आर दी total strength of personnel, active duty personnel in 1998. And the last one यहाँ पे ये this is something which is called histogram. So it looks like a histogram. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे. Word of caution here कि while Excel plots are easy, but R is much more powerful और बहुत flexible भी है, और Excel हर तरह के प्लॉट्स बहुत अच्छे बना भी नहीं सकते, और शायद ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग प्लॉट्स भी आपको R में ही या पाइथन में आप बना सकते हैं. And there's a lot of flexibility also in making those plots, or plot aesthetics be are much better in R or Python. Let's say. Now some pictures, some examples, like देखते हैं कि हमने दो variables हैं इस example में, like this is the weight, so x is के along, this is the weight of a vehicle, ये vehicle का weight है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, and this is the miles per gallon, so this is miles per gallon जो कि वो vehicle जो है वो करती है. So vehicle का weight versus miles per gallon जब हमने इसको plot किया है, तो एक sort of a relationship जो है वैसे ही दिखने साथ ही आपको जो नज़र आ रहा है कि as the weight is increasing, the miles per gallon of that vehicle is decreasing. कि जो average miles per gallon वो करती है, average mileage जो करती है वो vehicles जिस तरह करती हैं, तो जितना कम weight है vehicles का उतना ज़्यादा उनकी mileage है for a given gallon, और जितना ज़्यादा weight होता जाता है तो वैसे वैसे so there is a relationship, continuous downward relationship आपको weight का versus miles per gallon जो है नज़र आ रहा है. So just by plotting these two variables, we have explored some sort of a relationship between our variables of interest. Further, अगर हम इसको plot करने के साथ साथ, let's say हमने वो plot जो last time plot किया था वो भी है मौजूद, but in addition to it हमने एक और information इसमें add कर दी, and that was a categorical variable जिसमें कि यही सारे डेटा पॉइंट्स जो कि एक उसको इंडिकेट कर रहे थे, दे वर इंडिकेटिंग वन ऑफ द व्हीकल्स, एनी वन ऑफ द व्हीकल्स. सो उन्हीं व्हीकल्स को हमने उसके साथ एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था जिसमें ये शो कर रहा था कि वो व्हीकल क्या 4 सिलेंडर व्हीकल है, 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर है. सो हमने उन्हीं डेटा पॉइंट्स को अब इन एडिशन टू दैट हमने कलर भी कर दिया based upon the number of cylinders that each vehicle was having. So इससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि these vehicles, they are all 4-cylinder vehicles and they have less weight, and these are in the middle 6-cylinder vehicles have comparatively more weight as compared to the 4, and these vehicles which are more heavy vehicles, they are all 8-cylinder vehicles. So we have further explored our data by coloring it by some factor which is our categorical variable, showing indicating हमारे number of cylinders कितने हैं. Finally, उसके ऊपर let's say एक regression, आपने linear regression हो सकता है machine learning में पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे. So एक सिंपल रिग्रेशन लाइन, एक मॉडल जो हमने बात की थी ना पहले कि एक्सप्लोर इनिशियल डेटा एक्सप्लोरेशन और इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग द मॉडल का इंटरप्रिटेशन जो है. सो दिस लीनियर रिग्रेशन लाइन इज़ बेसिकली अ मॉडल. सो वो मॉडल जो है बेसिकली हमने प्लॉट किया ऑन टॉप ऑफ दैट
डेटा। सो हमें एक मॉडल की भी समझ आ रही है कि अच्छा हाउ क्लोजली इट इज़ रिलेटेड टू द डेटा, एंड ऑल्सो जो रिलेशनशिप है उसको हम ज़्यादा कंक्रीटली जो है वो देखने के काबिल हो सकते हैं। जियोग्राफिक डेटा अगर आपके पास हो किसी जगह के, अगर आपके पास लैट एंड लॉन्ग का डेटा, सो पोजिशनल डेटा लैट लॉन्ग या कोई एक्स वाई एक्सेस कोई सर्टन फॉर्म में आपके पास मौजूद है, सो जनरली इट्स वेरी यूज़फुल कि अगर आप उस डेटा को ऑन टॉप ऑफ सम मैप जहाँ के बुलेट लॉन्ग्स हैं उधर आप प्लॉट करके देखें, गिव्स यू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। लाइक फॉर इंस्टेंस ये ह्यूस्टन सिटी का डेटा है जिसके अंदर से बेसिकली उन्होंने डिफरेंट किस्म के क्राइम्स जो हैं वो जो रिपोर्ट होते गए पुलिस डिपार्टमेंट का डेटा है, तो उसमें से सिर्फ बर्गलरी जो है उसको उन्होंने यहाँ पे जो है ऑन टॉप ऑफ द ह्यूस्टन मैप जो है वो प्लॉट किया है। जो इंसिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल वैसे देखने से पता चला कि ये कोई एक सर्टन ट्रबल्ड नेबरहुड है ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है बर्गलरी की, और लेट्स से दीज आर better neighborhoods जहाँ पे let's say it's relatively more peaceful. So we don't know right now कि ये डेटा कितने अरसे का है, 1 साल का है, 2 साल का है। However, just by plotting it हमें एक general understanding आ रही है कि this area is not a very good area maybe to live in. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हीट मैप्स हैं। हीट मैप्स आर बेसिकली वेरी यूजफुल इन डिफरेंट सर्टेन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल ये आप बाद में अभी जब हम आर के ऊपर करेंगे तो वहाँ पे भी हम एक हीट मैप ड्रॉ करेंगे। सो दी एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द आवर्स ऑफ द डे, like 24 hours of the day, and the y-axis indicate the day of the week, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, something like that. So इसके अंदर हमें कुछ यहाँ पे मैक्सिमम जो लेट्स से आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लेकिन जनरली एक रफ इंडिकेशन जो है वो ये हो सकती है कि between 4 to 6 or let's say 7 to 9 on these days जो कि let's say हैं वर्किंग डेज हैं, सो उसके अंदर ये the frequency of whatever event here is very high. सो जनरली ये कहा जा सकता है कि let's say ट्रैफिक डेटा भी हो सकता है कि जिसमें 7 to 9 और ये जो ड्राइव टाइम है, छुट्टी का टाइम है और ये इनिशियल सुबह का टाइम है, इन टाइमिंग्स के अंदर लेट्स से ट्रैफिक इज़ वेरी हाई एंड अदरवाइज इट्स लेस ओवरऑल। सो तो हीट मैप से भी आपको रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे पता चल सकते हैं। सो द कलर इज़ इंडिकेटिंग कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है इन दीज टाइमिंग्स ऑन दीज डेज। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोग्राम्स। हम देखेंगे हिस्टोग्राम का भी हम मज़ीद बना के भी देखेंगे और इसको मज़ीद डिस्क्राइब भी करेंगे। ये कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए होता है, क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल डेटा है, सॉरी। सो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर आपके पास जो न्यूमेरिकल कॉन्टीन्यूस डेटा है आपके पास, कॉन्टीन्यूस डेटा, सो उसके लिए आप हिस्टोग्राम्स बनाते हैं। और हिस्टोग्राम ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप्ड हो, यहाँ पे ग्रुप्ड हिस्टोग्राम नज़र आ रही है आपको, लेकिन अनग्रुप एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर विदाउट एनी ग्रुपिंग भी हिस्टोग्राम बन सकती है, एंड इट इंडिकेट्स के जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो है वो किस तरह की है। ये ज़्यादा डिटेल्स आगे इंशाल्लाह आएंगी लेक्चर में। So, आपके पास अगर कोई डेटा है let's say which is based on certain geographic characteristics उसमें let's say मौजूद हैं, like for example इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का states
वाइज जो है ना सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है कि स्टेट बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही हैं, और मे बी एनी पर्टिकुलर क्या कहते हैं वेरिएबल और डेटा ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इसमें शो कर रहा है कि लेट्स से आप सॉरी जो मिनिमम जो वैल्यू है लेट्स से वो ये है, और जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हैं, जो इंडिकेटिंग के मे बी ये जो इन स्टेट्स के अंदर या इन स्टेट्स के अंदर इट्स मैक्सिमम इनमें फिर और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लेट्स से वो इन स्टेट्स के अंदर है, वट एवर दैट इंफॉर्मेशन इज़। लेकिन the color is also a good indicator on top of these kind of maps to show कि आप अपना डेटा जो है कैसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं टू द अदर पर्सन, और या फिर आप अपनी इंसाइट्स भी कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं। So what is data visualization? Formally, it's a mapping of data properties, like mapping of data properties to visual properties. All right. So आप data की properties को आप visual properties में transform करते हैं. Data properties are usually numerical or categorical, and while the visual properties can be some xy coordinates, some colors, some sizes, some shapes, some heights. So हम numerical या categorical properties को in the form of some colors, size, shapes, heights, coordinates हम जो है ट्रांसफॉर्म करके उससे बेहतर इंसाइट्स अपनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वाई इज़ इट वेरी इम्पोर्टेंट, वाई नॉट कि हम लोग सिर्फ वही यूज़ कर लें जैसे हम यूज़ कर रहे थे, लाइक जो हमारी न्यूमेरिकल स्टेटिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि 5 पॉइंट समरी या फिर मीन और बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए ही हम क्यों नहीं डिस्क्राइब कर सकते एक डेटा को। सो उसकी एग्ज़ाम्पल है सम English or French mathematician or statistician, Anscombe जो है उसका quote is a very important or very useful example in that case कि उसने ये 4 data sets बनाए थे, like this 1 2 3 और 4। so इसमें x हर चारों data sets में x और y की values जो हैं उसने कुछ डिस्क्राइब की हुई हैं, लाइक एक्स वैल्यूज़ तो सारी सेम है, 10 8 13 9 11 और इस तरह से सारा एक्स वैल्यू सारा के साथ सेम है। और वाई वैल्यूज़ डिफरेंट आप देखोगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हाउएवर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ या इंटरेस्टिंग थिंग बहुत ज़्यादा वही है कि इन चारों के केसेस के अंदर इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लाइक they all have a mean of 9 in subdomain. Let's say it's of x is 9, and while the mean of y is 7.5. So जितने भी y's हैं ये these are all y's, और जितने भी उन सब का mean जो है 7.5 irrespective के values जो मर्जी हैं, और x का mean x तो x का mean जो है that is 9. So x in first 2 cases में exactly same है, third case में भी exactly same है, however fourth case में x is different. Fourth case में अगर आप देखें तो x is all 8 except for 1 which is 19 here. So जो mean of x है it's all 9, and irrespective जो मर्जी जो है data set है, और mean of y is also 7.5. The sample variance of x is 11, while the sample variance of y in all the cases is almost 4.125. So variance of x जितने भी x's हैं इन सब की variance is almost same 11 के around है, जबकि y's जितने भी हैं उन सब की variance 4.125 है। और एक और चीज़ जो सब में common है कि चारों data sets के अंदर हमारे पास जो कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई की जो कोरिलेशन है, जो कि हम बाद में किसी लेक्चर में कोरिलेशन का भी फार्मूला देखेंगे क्या होता है,
it is 0.816, exactly the same correlation between. और जो लीनियर रिग्रेशन अगर आप इसके ऊपर ड्रॉ कर बनाएं तो लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन जो बनती है वो भी सब के केसेस में y इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5x जो है वो बनती है. सो ऑलमोस्ट लगता है कि चारों के चारों बिल्कुल आइडेंटिकल डेटा सेट्स होंगे या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा सेट्स होंगे. और अगर हम इन्हीं चीज़ों को प्लॉट करके देखें, विजुलाइज करके देखें तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो यू कैन सी वेरी वेल. सो दिस वाज द फर्स्ट डेटा सेट. आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट डेटा सेट एक x5 प्लॉट स्कैटर प्लॉट इसका नज़र आ रहा है. सो इट्स लाइक पॉजिटिव रिलेशनशिप में इस तरीके से ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अ लीनियर काइंड ऑफ फैशन में है, बट डिस्पर्शन इज मोर आपस में. यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये कोई parabola type चीज़ है और this is some very straight line and one outlier, and there's also almost everyone is 8 and one is outlier. So all four data sets are different, very different, but visually. However, numerically they were almost identical. So visually जब आपने इनको प्लॉट करके देखा तो तब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि how much different they are. So that speaks of कि how much important is it कि आपको अगर numerical values जो हैं या numerical characteristics जो हैं वो अगर सारे similar भी मिल रहे हों, even then why is it very important to actually plot and see कि आपके variables जो हैं या आपका data जो है वो कैसा नज़र आता है. So हमने जनरली कुछ ग्राफ्स को हम ज़रा डिस्कस डिटेल में करेंगे. वी विल डिस्कस द फ्रीक्वेंसी टेबल्स हम कर चुके हुए हैं और मैंने इसके लिए आपको बताया था कि यू कैन यूज़ टेबल जो फंक्शन है फॉर डिस्क्रीट डेटा स्पेशली द कैटेगोरिकल डेटा. आप जो है वो टेबल का फंक्शन आर के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर कंटिन्यूस डाटा. इट विल नॉट गिव यू कंटिन्यूस डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना इज़ डिफरेंट. इट्स नॉट फ्रॉम द टेबल कमांड. स्कैटर प्लॉट्स, टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, हम इसको देखेंगे, बार चार्ट्स को देखेंगे, हिस्टोग्राम्स और बॉक्स प्लॉट्स को हम देखेंगे. So move further. So the first one is bar plots. Bar plots या bar charts जो हैं या bar graphs जो हैं, so they are basically for categorical data. So this is important. They are mainly for categorical data. So they plot one bar for each category and the bar show the counts or the percentage of the observations in each category. Like for instance आपके पास let's say मेल और फीमेल डेटा है. मेल आपके पास यानी कि ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑब्जर्वेशन 1 इज़ मेल जो ये इन्फेंट्स की बर्थ एंड 3rd फीमेल, 4 फीमेल, 5 फीमेल, 6 मेल, इस तरह करके आपके पास ढेर सारा डेटा है. अल्टीमेटली आपके पास आ जाते हैं कि लेट्स से इसमें 502 मेल्स हैं और 572 फीमेल्स हैं लेट्स से. सो वन वे ये काउंट है आपके पास. सो इन काउंट्स को आप एक बार प्लॉट में मेल और फीमेल की फॉर्म में, लेट्स से दिस इज़ 500, दिस इज़ 600, तो इस तरह इस फॉर्म में आप उसको डिपिक्ट कर सकते हैं. सो दिस कैन बी a count or this can be maybe something like a percentage also. Okay, यहाँ पे आपकी 502 के बजाय आपने इसकी percentage दी होगी. Let's say this is maybe 40, I don't know exactly, 47% and this is 53%, I don't know exactly. However, इस तरह से भी आप इसको जो है ना वो शो कर सकते हैं. दोनों केसेस में बार की हाइट would remain the same.
सो बार प्लॉट अगर आपने बेस आर में प्लॉट करना हो, यानी कि बिल्कुल जो बेस ग्राफिक्स हैं आर की, तो उसके अंदर जो फंक्शन है इट्स कॉल्ड बार प्लॉट, सिंपल। और इसके अंदर आप अपना डेटा देंगे, जो भी कैटेगोरिकल डेटा है वो आप इसमें एज इनपुट देंगे, और उसमें ऑप्शंस अगर आप इसके बाद डेटा देने के बाद कॉमा लगा के आप हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल बार्स होंगी। लेकिन लाइक दीज, ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, इस तरह से बार्स बनेंगी अगर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू रखा आपने। और डिफ़ॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू फॉल्स, डिफ़ॉल्ट में बार्स जो हैं वो इस तरह से बनती हैं, राइट। सो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, बट अगर आप उसके अंदर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे तो फिर वो इस तरह से बार्स, आपको हॉरिजॉन्टल बार्स मिल सकती हैं। सो दिस इज़ हाउ, अगर आपने वो प्लॉट करना था। सो एक मैन्युफैक्चरर डेटा, लेट्स से रफ मैन्युफैक्चरर डेटा है, ये आगे किसी जगह पे हम लोग देख भी लेंगे। So this is some data जो कि which is related to the manufacturers of, let's say, cars like BMW, Harley Davidson car, or maybe motorbikes, bikes. So उसके अंदर आपके पास, आपने उसको टेबल कर दिया, so maybe आपके पास ये इस तरह का डेटा था, like BMW, Honda, Kawasaki, Harley Davidson। तो ये सारा आपके पास डेटा था, डेटा का कोई एक आपने उसको टेबल कर लिया। तो अब बेसिकली टेबल जब आपने उसको किया तो बेसिकली उसने उसको नंबर्स या काउंट्स उसके बता दिए होंगे कि BMW 2 और Honda लेट्स से 40, इस तरह करके आपके पास जो है वो ये जो फंक्शन है उसने उसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया। और द ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने उसको बार प्लॉट को दिया, और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमने लेबल्स बनाए हैं। ये दीज आर नथिंग एल्स बट सिंपल लेबलिंग, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू या हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू फॉल्स, अगर आप इसको करें हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू किया तो आपके पास ये आ गया। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्स लेबल आपके पास काउंट यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है, वाई लेबल आपके पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ आ रहा है, और उनके नाम यहाँ पे, चूँकि ये ओरिजिनल डेटा में नाम इस तरह से थे तो इस तरह से वो नाम आ गए। और अगर हमने एक्स हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू ना लिखा हो तो वही चीज़ हमारे पास वाई लेबल काउंट के साथ हमारे पास ये वर्टिकल बार प्लॉट जो है वो आ गया। फ्रैक्शंस अगर हमने प्लॉट करने हो तो हम डेटा ही उसको इस फॉर्म में दें कि वो फ्रैक्शनल डेटा हो। ये देखें आपको कि आपने उसको दिया बेसिकली इस तरह से कि आपने जो नंबर्स थे, नंबर्स को उसके टोटल जो लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चर का मतलब है जो सो ये सारा का सारा डेटा है जिसमें BMW, Honda, इस तरह सारा। सो टोटल लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चर का मतलब है कि ये टोटल काउंट जो है वो कितना है, लेट्स से ये सारे के सारे टोटल लेट्स से 200 है। तो टेबल मैन्युफैक्चर का मतलब है कि आपने इसमें BMW 2 हैं तो 2/200 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये यहाँ से हमें ये बेसिकली ये चीज़ पता चल रही है। Honda 40 हैं तो 40/200 उसका हमें पता चल रहा है। सो इट लाइक दिस, आप जो है फ्रैक्शंस आपने बना लिए और फ्रैक्शन आपने लेबल अकॉर्डिंगली उसको कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे लेट्स से फ्रैक्शन के फॉर्म में आपके पास सारा डेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपके पास यहाँ पे आ गया। Some do's and don'ts of bar chart. So it's important कि आपके पास बार चार्ट जो है ना, you must keep them separate and distinct, because ये इन्हें आप साथ साथ हरगिज़ नहीं मिलाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। BMW एक सेपरेट कैटेगरी है, हार्ले डेविडसन एक सेपरेट कैटेगरी है, लाइक सेम वे कावासाकी या यामाहा या, सो यू आर नॉट गोइंग टू जॉइन देम टुगेदर। सो you should keep them separate and distinct, like here give frequencies. The other thing is
the center the bar on the category names like this, center like Honda ताकि easy readability हो, Yamaha, Kawasaki, and don't use the cute graphics or plot in 3D. So don't do this. 3D perspective जो है, जो हमारा मकसद है उसको बिल्कुल ही फौत कर देता है. So it's never ever advisable analytical work में, data science के अंदर it's never ever advisable कि आप इस तरह की 3D bars या 3D graphics जो है आप उसको यूज़ करें और उसको अपनी रिपोर्ट्स में जो है वो लगाएं. So don't use it. It's never advisable. So this kind of a graph is advisable. नेक्स्ट हम आते हैं बार चार्ट्स या बार प्लॉट्स या बार ग्राफ्स जो हैं वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए थे. अब हम हिस्टोग्राम के पास आते हैं. हिस्टोग्राम्स आर बेसिकली फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा. सो वहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा भी था और कैटेगोरिकल डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है और discrete. Sorry, categorical data can be discrete also, but categorical data cannot be continuous, and continuous data can only be numerical. So numerical data जो है आपके पास जो आता है उसमें आपके पास दो हमने discrete और continuous data की बात हमने जो है ना वो की थी. discrete values का मतलब है 4, 4, 3, 2 इस तरह से करके, एंड कॉन्टीन्यूस डेटा का मतलब है कि एक पूरा कॉन्टीन्यूम में आपके पास एक इंटरवल के ऊपर आपके पास सारे का सारा डेटा जो है वो मौजूद है. So generally this is all about not discrete. It is all histograms are more about a continuum of data. So histogram is a graph of observed frequencies in a sample or a population, or they display the distribution of the data. And how do you read it as histogram? अभी आप यहाँ पे देखेंगे. So what does this indicate? So just a minute, मैं इसको ज़रा और so what does this indicate? ये indicate करता है कि this is the frequency here. So this is the frequency here. So this indicates that there are 10 observations which are greater than 215, because here it is 215, and there are less than 225. So इस इंटरवल के दरमियान आपके डेटा के अंदर 10 observations, total 10 observations जो है ना वो मौजूद है. So this is what it is indicating. Between this interval आपके डेटा के अंदर total 10 observations जो है वो मौजूद है. सेम भाई अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि 195 और 205 के दरमियान only one observation जो है वो मौजूद है. So this is how you read a histogram. और इसमें बेसिकली आपने क्या किया कि आपने 10 के इंटरवल्स बना लिए. सो ये बिन्स भी नहीं कहते हैं, आप ये हम आगे भी देखेंगे बिन्स. सो आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा था, आपने उसके अंदर 10 के बिन्स बना लिए. मिनिमम वैल्यू लेट्स से 195 से शुरू हो रही थी. सो 10 फर्स्ट बिन आपका 195 से 205 तक था. 205 6 से लेके तो अगला जो है से या लेट्स से ये 119 25 204 तक था. अगला 205 से तो whatever 214 तक है. और इस तरह करके आपके पास ये बिन्स जो हैं वो 10 के या 9-10 के जो है वो बिन्स जो है ना आपके ये 215 तक है, 215 है. लेट्स से हम आगे देखते हैं कि हमने इसको कैसे डिसर्न करना है. ऑलराइट. So histograms
डिपिक्ट द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस अभी हमने चूँकि नहीं पढ़ी तो आपको 100% उस चीज़ की बात नहीं है। एम्पिरिकल यानी कि डेटा, एम्पिरिकल जो भी डेटा है आप उसके नंबर्स के किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं ऑल ओवर द प्लेस, वो इंडिकेट करते हैं। सो they help us roughly to locate the central tendency or the central location of the data, और डेटा की वेरिएबिलिटी कितनी है वो भी रफली हम हिस्टोग्राम से जो है वो देख सकते हैं। ओवरऑल शेप क्या है डेटा की, दैट इज़ आल्सो, और इस तरह की चीज़ें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है, स्क्यूड है। अभी हम ये सिमेट्रिक और स्क्यूड को हम अभी आगे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और कोई अनयूजुअल बिहेवियर भी तो मौजूद नहीं है इसके अंदर कि लाइक फॉर इंस्टेंस कि आपके पास इस तरह से एक डेटा मौजूद है लेकिन यहाँ पे भी लेट्स से कोई एक वैल्यू इधर मौजूद है। सो एक अनयूजुअल बिहेवियर आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। आर के अंदर आप हिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे और हिस्ट के फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ जो आप देंगे तो ब्रेक्स की ऑप्शन होती है। ब्रेक्स की ऑप्शन का मतलब है कि आप कितनी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट देंगे तो डिफ़ॉल्ट उसका एक फार्मूला है, वो उसके मुताबिक आपको नंबर ऑफ़ बिन्स बना देता है। आप अपनी तरफ से ब्रेक्स बनाएंगे तो आप ख़ुद से उसको बता सकते हैं कि लेट्स से ब्रेक करें इसको आप 5 बिन्स में या 10 बिन्स के अंदर, जिसमें मर्जी, या 15 में या 12 में, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक by square root of n is the total number of observation. I don't know exactly r क्या यूज़ करता है, आप उसकी जो हेल्प फाइल है उसके अंदर ये देख सकते हैं। समटाइम्स इट्स सेड कि आप अंडर रूट ऑफ n यानी टोटल नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका स्क्वायर रूट लें तो उतने आप बिन्स या ब्रेक्स करें। एक और कुछ और लिटरेचर में इसको कहते हैं कि log ऑफ n डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, और ये जो वैल्यू आती है इसको आप जो है बेसिकली यूज़ कर सकते हैं फॉर इससे जो नंबर आता है उसको आप राउंड ऑफ करें टुवर्ड्स अ हायर इंटीजर, तो वो आपको जो है बेसिकली दे देगा जो नंबर देगा। सो दैट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ, और एक वैल्यू एक कुछ लिटरेचर में n रूट n भी कहा जाता है। हाउएवर यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट। बाय डिफ़ॉल्ट r कितने बिन्स बनाता है आप उसकी हेल्प फाइल में देख सकते हैं। पिक्टोरियली लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे r का कुछ कोड लिखा हुआ है और उसमें पिक्टोरियली इस चीज़ को इंडिकेट किया हुआ है। जो फर्स्ट फंक्शन है पार का, ये बेसिकली आप इसके अंदर ये बताते हैं कि आप कितने लेट्स से प्लॉट्स बनाना चाहते हैं। पार का फंक्शन में अगर आप मल्टीपल ग्राफ्स बनाना चाहते हैं फॉर दिस इज़ फॉर मल्टीपल ग्राफ्स इन अ प्लॉट, इसका आप हेल्प फाइल में देख सकते हैं। सो दिस इंडिकेट्स कि 2 by 1 का मतलब ये है कि 2 rows and 1 column. So ये जो चीज़ है बेसिकली इसने ये दो ग्राफ्स इस तरीके से बनाए हैं, ये दो ग्राफ्स बनाए हैं इस तरीके से। सो इसमें इसने किया क्या, इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली कि हम लोगों ने आर नॉर्म एक फंक्शन है जो कि रैंडम नंबर्स जनरेट करता है रैंडमली बेस्ड अपॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम आगे बहुत काम ये करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव अ फील कि ये बनेगा क्या, आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एंड सी व्हाट कम्स आउट। और जो नंबर्स यानी 100 नंबर्स बेसिकली यहाँ पे टोटल 100 नंबर्स ये जनरेट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके मीन ले रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा है और उसके बाद उसकी हिस्टोग्राम बना रहा है। और हिस्टोग्राम दो तरीके से बना रहा है कि सिंपल हिस्टोग्राम विदाउट एनी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉल्स करके बना रहा है। सो जब इसने फर्स्ट हिस्टोग्राम है वो इस तरह से बनी हुई है। सो
इसमें इसने सिंपल उन 100 नंबर्स को प्लॉट कर दिया, तो आपको एक रफली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। रफली 100 के अंदर 100% नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पे बेसिकली आपको बता रहा है कि लेट्स से कि इससे इस इंटरवल के दरमियान टोटल लेट्स से फ्रीक्वेंसी वाज अबाउट 25 वैल्यूज़ थी, इधर लेट्स से 20 वैल्यूज़ थी। सो दिस इज़ शोइंग यू कि टोटल काउंट इन इंटरवल्स के दरमियान कितना था। और यही चीज़ जब फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू फॉल्स करके प्लॉट की, तो उसमें उसकी डेंसिटी बता रहा है, लाइक परसेंटेज बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी अब काउंट नहीं बता रहा, बल्कि परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़, जो टोटल वैल्यूज़ यानी आउट ऑफ 100 लेट्स से यहाँ पे टोटल 25 आउट ऑफ 100 है, तो जितनी भी यहाँ पे 25 आउट ऑफ 100 not sure 100%. So ये वैसे तो जनरली बन रहे 0.05, so point is not 25 out of 100, 0.5. So this is showing the density is about 0.05 for this value. So बात कर रहे थे हिस्टोग्राम में डेंसिटी की। सो डेंसिटी इज़ नॉट फ्रॉम, ये चीज़ मैंने गलत लिख दी। डेंसिटी इस तरह से होती है कि डेंसिटी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अगर इफ़ द एरिया अंडर दिस होल हिस्टोग्राम इज़ 1, अगर इफ़ द एरिया इज़ अंडर द कर्व जनरली कहा जाता है, लेकिन एरिया इज़ 1, तो उसमें इस बार का कितना पोर्शन है, तो लेट्स से वो 0.05 है। सो ये क्या चीज़ है, ये जब हम PDFs और CDFs देखेंगे तो तब एरिया अंडर द कर्व और ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आएंगी। सो एट दैट टाइम आपको डेंसिटी जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं उसकी जो है बेहतर समझ आ जाएगी। हाउएवर चाहे आप डेंसिटी लिखें या फ्रीक्वेंसी को फॉल्स रखें या ट्रू लिखें, द शेप वुड बी द सेम, दोनों की शेप में कोई फ़र्क नहीं होगा। लास्ट ये जो इंडिकेट किया हुआ यहाँ पे, सो हिस्टोग्राम यहाँ पे जो बनाई हुई है इन्होंने इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दिया हुआ है, और लेट्स से एक लाइन भी उसके ऊपर इंडिकेट की हुई है। हम इस चीज़ को ये जो जिस तरीके से ये जो एक रेड सी लाइन आपको जो है ना ये नज़र आ रही है, फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह जब हम विल गेट ऑन टू द टॉपिक ऑफ PDFs, तो वहाँ हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। However, there is no harm कि अगर आप इस कोड को भी प्लॉट करके ज़रूर देखें अपने पास, जो आपके पास वो है और उसमें इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और देखेंगे इससे क्या बन रहा है, वाइल लिम को चेंज करने से, वाइल लिमिट चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। विल डू सम प्रैक्टिस, जब मैं आर का सेशन इसके बाद रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें भी ये चीज़ें मैं आपको करके भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा। हिस्टोग्राम की एक एग्ज़ाम्पल है, चैलेंजर वॉज स्पेस शटल जो कि एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, और ऑन बोर्ड इसके ये एस्ट्रोनॉट थे, ऑल गॉट किल्ड, जिसमें फर्स्ट टीचर भी थी, शी वाज गोइंग इन स्पेस। हाउएवर उसका जो फेलियर जो था, फेलियर की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें ओरिंग्स के फेलियर was suspected to be one reason. Another reason जो कि कहा जा रहा था, can be possible reason was the temperature, the outside temperature at the time of launch. So ये जितनी भी उससे previous launches हुई थी शटल्स की, उन launches का temperature, outside temperature है in Fahrenheit. So आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ भी सकते हैं। सो ये जो सारे लॉन्च टेम्परेचर्स हैं एट दैट टाइम, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर थे इन फॉरेनहाइट। सो ये लास्ट है 31, दिस इज़ एक्चुअली द टेम्परेचर जो कि उस दिन था।
सो इसको हिस्टोग्राम में प्लॉट किया हमने यहाँ पे, और दिस इज़ हाउ जो चैलेंजर का डेटा है उसको पहले एक उसे वेक्टर फॉर्मेट में स्टोर किया, और फिर उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बनाया। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम जो है चैलेंजर की बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉल्स करके यहाँ पे बन गया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रू करके यहाँ पे बन गया। और इसमें जो डूज एंड डोंट्स हैं बेसिकली हिस्टोग्राम्स में, उसमें डू ट्राई the alternate number of bars, start with the number of classes is equal to square root of n, यानी कि ब्रेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन करके आप बेसिकली ट्राई करें, स्टार्ट करें, बाय डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट करें, उसके बाद स्क्वायर रूट अंडर n माइनस वन से आप आगे इस तरह बढ़ते जाएं। वाई? बिकॉज अगर आप देखें अगर आपके बिन्स बहुत कम हों तो भी, यानी कि लाइक 20 का इंटरवल है, यहाँ पे 10 का इंटरवल है, यहाँ 5 का इंटरवल है, और ये ऐसा इंटरवल इसने ब्रेक्स इज इक्वल टू 25 जब कर दी, तो हर इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो एक इंटरवल बन गई, इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं वो एक इंटरवल से बन गई हैं। सो इसमें जो करने की जो डोंट्स में जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि डोंट चूज अनइक्वल बिनविड्थ्स, अनइक्वल बिनविड्थ्स, never ever use that. Keep the bar widths all the time same, and don't plot histograms by hand and use software. सो एक्सट्रीम्स जो होती हैं हिस्टोग्राम में, मैंने आपको ये जो राइट साइड वाला है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें हर टेम्परेचर जो है वो एक उसमें जो है ना वो चला गया था, उसके लिए एक अलग से बन गया था। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज़ कि आप इसकी ब्रेक इतनी बड़ी बनाते हैं, इतना बड़ा इंटरवल बनाते हैं कि सारे का सारा डेटा जो है वो एक उसके अंदर जो है ना वो हिस्टोग्राम में कवर हो जाए। सो दैट्स ऑल्सो नो यूजफुल एट ऑल। सो स्क्वायर रूट एन जो है, लेट्स से यहाँ पे स्क्वायर रूट एन माइनस वन आपने ब्रेक्स रखी, तो टोटल स्क्वायर रूट एन क्लासेस आपके पास टोटल बनी। सो दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है। हिस्टोग्राम की शेप्स के ऊपर हम बात करें तो वन ऑफ द थिंग जो कि इसके ऊपर आपको नज़र आएगी वो है कि सिमेट्री, कि अगर आपको सिमेट्री नज़र आ रही है तो सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर आप सेंटर में उस हिस्टोग्राम की इस तरह से लाइन ड्रॉ करें कि दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास इक्वल एक ही तरह की जो है ना वो आइडेंटिकल शेप हो, यानी कि मिरर इमेज जो है ना वो लेट्स से वो बन रहा हो कि ये सो ये मिरर इमेज जो है ना ये बन रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, या फिर इसी तरह से मिरर इमेज जो है ना आपके पास जो है वो बन रहा हो, तो इस ऐसे केस में हम कहेंगे कि हिस्टोग्राम जो है वो सिमेट्रिक है। स्क्यूनेस एक एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और स्क्यूड का मतलब ये होता है कि एक साइड के ऊपर आपको टेल नज़र आएगी, राइट टेल और लेफ़्ट टेल जो है ना आपको नज़र आएगी। सो इट्स हिस्टोग्राम इज़ वन विद अ लॉन्ग टेल एक्सटेंडिंग टू आइदर राइट और द लेफ़्ट साइड। सो इट्स मेजर ऑफ एसिमेट्री। जो ये स्क्यूनेस का वो है फार्मूला है, वी विल सी दैट आल्सो इन सम अदर लेक्चर। इट्स ऑल्सो समरी मेजर के अंदर स्क्यूनेस भी आ जाती है, हमने अभी फर्स्ट उस पोर्शन में कवर नहीं की, लेकिन जनरली समरी मेजर्स जो हमने न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव चार्ट्स थे उसमें स्क्यूनेस भी इट कैन बी इंक्लूडेड इन दो समरी मेजर्स। सो पॉजिटिव स्क्यूड अगर राइट साइड पे जो है ना वो टेल बड़ी है और लेफ्ट साइड पे टेल बड़ी, तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड जो है उस डेटा को कहते हैं। मॉडल मोडालिटी यूनी मॉडल बायो मॉडल मैंने क्लास लेक्चर में भी बात की थी कि अगर आपके पास सिंगल पीक हो तो उसको हम यूनी मॉडल कहते हैं, यानी कि सिंगल पीक। और अगर यानी कि मोड अगर आपको याद हो तो हमने डिफ़ाइन किया था कि वो वैल्यू जो कि द मोस्ट रिकरेंट वैल्यू जो है उसको मोड जो है वो कहते हैं मीन मेजर और मोड के अंदर। और अगर आपके पास मल्टी मॉडल हो, सो इस टाइप की नॉट एग्जैक्टली कि दोनों एग्जैक्ट मोड्स हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ
मल्टी मॉडल काइंड ऑफ ट्रेंड, दो इस केस में बाई मॉडल है, टू पीक्स इसमें आपको जो है ना वो नज़र आ रही है। अगर डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन टू मोड्स लाइक मे बी इस तरह से, तो इसको फिर हम मल्टी मॉडल जो है ना वो कहते हैं। बेल शेप सबसे हिस्टोग्राम जो है पॉपुलर और वेरी यूज, मतलब समटाइम्स बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है, और नेचुरली जो अकरिंग फिनोमेनाज हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है, जो बेल शेप्ड जो है ना वो हिस्टोग्राम्स जो हैं वो, इट्स a special type of symmetric unimodal histogram which is like एक inverted bell की shape जो है ना वो बनती है। The bell is like this shape और यहाँ पे वो घंटी है जो कि बजती है। So inverted bell की shape में, ये sorry not inverted, ये bell की shape में आपको जो है ना वो histogram नज़र आती है। So बहुत सारी statistical techniques हैं जो हम करेंगे जिसमें हम एक assumption होती है कि डेटा को हम अज्यूम करते हैं कि वो रफली बेल शेप्ड होगा, एक अजम्पशन होती है। ये हम आगे जब देखेंगे तो इंशाल्लाह मॉडलिंग वगैरह के अंदर बहुत सारी केसेस के अंदर हम लोग इस चीज़ को अज्यूम करते हैं। रिग्रेशन में भी आपको इस तरह की अजम्पशंस जो हैं आपके जो मशीन लर्निंग वाले होपफुली जो टीचर हैं वो अगर लीनियर रिग्रेशन कवर करेंगे तो उसके अंदर भी नॉर्मलिटी की assumptions जो हैं ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। So drawing the histogram helps verify the shape of the population in question. This is a good use of visualizations. अगर मेन मोड और मीडियन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट मे बी यूनिमोडल एंड सिमेट्रिक। इफ़ दे आर ऑलमोस्ट मीन मीडियन और मोड जो है वो क्लोज बाय हों तो जनरली आपके पास इट विल बी अ यूनिमोडल एंड सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। बार प्लॉट्स और हिस्टोग्राम में कुछ मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि बार प्लॉट्स जो है वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए एंड ऑफन मोस्ट इजीली रेड विद बार प्लॉट्स प्लॉटेड हॉरिजॉन्टली एंड adjacent bars are separated from each other. Histograms जो है वो it's for continuous data, numerical continuous data के लिए, and continuous convention is to plot the bars vertically, like looks like a probability density function, PDF stands for। हम आगे next chapters में next topics में हम PDFs cover करेंगे। और adjacent नॉन ज़ीरो बार्स टच ईच अदर। सो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बार्स को हमेशा एक दूसरे के साथ साथ जो है वो प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम में यू ऑलवेज कीप द बार्स टुगेदर, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं रखते विच डिनोट्स द बिन फॉर दैट बार। बॉक्स प्लॉट्स और एक और इम्पॉर्टेंट प्लॉट है, ये भी स्प्रेड और सेंट्रल टेंडेंसी को डिनोट करने के लिए बहुत यूज़फुल प्लॉट है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। इसकी की एक वेरिएशन है जिसको क्या कहते हैं, पाइथन का एक पैकेज है सीबोर्न इज़ अ पैकेज ऑफ पाइथन का सीबोर्न पैकेज है फॉर प्लॉट्स। तो उसके अंदर इसकी एक वेरिएशन है जिसको कहते हैं वॉयलेंट प्लॉट। सो बार प्लॉट भी बॉक्स प्लॉट भी मौजूद है, वॉयलेंट प्लॉट भी मौजूद है। सो इसकी और वेरिएशन हो सकता है ये आर में भी या जीजी प्लॉट में भी मौजूद हो, मुझे आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे इसका जो है वो कंफर्म नहीं है। सो आई यूज इट इन वन ऑफ माई वर्क, सो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर कि वॉयलेंट प्लॉट इज़ वेरिएशन ऑफ बॉक्स प्लॉट। So box plot जो हैं वो they are only useful for continuous variables and they are good for comparing distributions of continuous variables between different categories के दरमियान। अभी हम आगे प्लॉट्स के एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें नज़र आएगा हमें कि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखनी है या
ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, तो उनके दरमियान अगर हम उनके साइड बाय साइड अगर हम प्लॉट करें तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है यूजिंग द बॉक्स प्लॉट्स. However, it will not show you the multiple modes. इलस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो सेंटर में बॉक्स एंड इसको बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं, समटाइम्स इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स भी कहते हैं. विस्कर प्लॉट बॉक्स में, सो ये जो बॉक्स बनता है दरमियान में, दिस बॉक्स, ये जो IQR के ऊपर बनता है, ये 25th और 75th परसेंटाइल जो है ना, ये इंडिकेट करते हैं इन एजेस को, इस बॉक्स के एजेस को. दिस डज नॉट इंडिकेट, ये जो विड्थ है ये कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रही होती. दिस विड्थ इज़ बेसिकली IQR. उसके दरमियान में जो ये लाइन है ये मीडियन को इंडिकेट कर रही होती है. समटाइम्स एक छोटा सा डायमंड बना होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है मीन को, समटाइम्स, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम. ये पैकेज टू पैकेज वेरी करता है. सो ये जो सेंटर वाली लाइन है इस बॉक्स के अंदर वो मीडियन को इंडिकेट कर रही है. बॉक्स जो है 25th और 75th परसेंटाइल को इंडिकेट कर रहा है. और उसके साइड के ऊपर ये विस्कर्स होते हैं. ये विस्कर्स क्या इंडिकेट करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन कि इस पैकेज में आप काम करें. कुछ केसेस में विस्कर्स जो हैं वो मिन और मैक्स वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू ऑफ द होल डेटा. कुछ केसेस या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फोर्थ स्प्रेड यानी कि IQR का 1.5 डिस्टेंस जो है उसको इंडिकेट करते हैं. यानी कि IQR लेट्स से आपकी यहाँ पे टोटल जो है वैसे 25 है, टोटल 25 टाइम्स 1.5 जो डिस्टेंस है जितना बनता है वो उस जगह पे विस्कर जो है ना वो लग जाएगा. उससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ के तौर पे इंडिकेट करेगा. इंडिविजुअल वैल्यूज़ के तौर पे आगे इंडिकेट करेगा. विस्कर्स यहाँ पे 1.5 टाइम्स IQR के ऊपर उसको ख़त्म कर देगा और आगे. लेकिन कुछ केसेस में नॉट एग्जैक्टली मोस्ट मैंने जितने भी जहाँ भी प्लॉट किए हैं उसमें ये चीज़ नहीं थी. लेकिन हाउएवर वो क्या कहते हैं, लिटरेचर ये कहता है कि कुछ केसेस में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स हो सकते हैं आपको मिन और मैक्स तक विस्कर जो है ना वो लगा. और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके विस्कर 1.5 FS तक होगा और उसके बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारे के सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स के तौर पे जो है ना वो नज़र आ रही होंगी आपको. तो ये जितने भी हैं ग्रेटर देन 1.5 FS इन सब को आउटलायर्स कहा जाएगा. ये सब के सब आउटलायर्स कहलाएंगे. So they have a lot of difference distance from the plot, from the other data. So comparative box plots यहाँ पे let's say आपको जो मैंने कोर्स बुक दी थी उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 60 है. उसके अंदर जो डेटा जिस तरह से दिया हुआ है उसमें दो कैनिस्टर और टेस्ट दो कैटेगरीज हैं. उन कैटेगरीज़ को आपने ग्रुप वाइज अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो आपको जो मैं बात कर रहा था कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में कैटेगरी वाइज आप अगर उस डेटा को डिनोट करें तो आपको उसके दरमियान अच्छा इसका मीडियन ये है, इसका मीडियन ये है, इसका स्प्रेड बहुत कम है, इसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है, इसमें दो आउटलायर्स हैं. सो ये चीज़ें जो हाउ दिस कैनिस्टर इज़ डिफरेंस फ्रॉम दिस टेस्ट जो है वो आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है. इस विड्थ का कोई मतलब नहीं है. इट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग. तो इट्स ऑल इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. जो हम इसका स्प्रेड देख रहे हैं या उसका सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्यूनेस लेट्स से यहाँ पे लगेगी. मीडियन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मीन भी लगाया हुआ होता तो हमें ज़्यादा बेहतर है. और लेट्स से इसके अंदर डेटा इज स्क्यूड. सो गूगल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट बॉक्स प्लॉट के एग्जांपल्स जो है इस तरह से आपको मिल जाएंगी. गूगल प्लॉट्स और इमेजेस में अगर आप जाकर सर्च करें सो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये सारे विस्कर के आगे ये सारे के सारे आउटलायर्स हैं. ये मीडियन है और ये लेट्स सी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. इसके अंदर हम लोग इसको देख रहे हैं. ये जिस तरह यहाँ पे भी हेयर एंड हेयर ऑल्सो. सो
एक अच्छा आपके पास जो है ना सिंगल टेंडेंसी स्प्रेड और कैटेगरी वाइज उसको साइड बाय साइड प्लॉट करके आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन बॉक्स प्लॉट्स दे देते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप खुद अपने हाथ से भी कर सकते हैं। आप डेटा लेट्स से इसका प्रिंट आउट लेके जर्नल आप देखने की कोशिश करें कि लेट्स से मीडियन क्या बनता है इस सारे डेटा के अंदर। सॉरी, तो जो तो जहाँ भी मीडियन बनता है वो आप वो मीडियन लेट्स से 67.5 है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो 67.5 समवेयर है कहीं पे मीडियन बनेगा। सॉरी, और 75 पे इसका 75th percentile is 75 पे, so this is 75, और 59.5 is like 60, so this is somewhere here, so ये आपका बॉक्स बन जाएगा। अब वो टोटल IQR आप देख सकते हैं कि कितनी है, 5 + 3 7 या फिर 6.5। इसकी IQR है 6.5 टाइम्स 1.5, उससे आप अपने विस्कर्स लगा सकते हैं और उसके बाद आउटलायर्स आप देख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन दिस। अभी राइट नाउ ये जो अगर मैं इसके ऊपर से साइड ड्राइंग जो मैंने की है इसको ख़त्म कर दूं, तो ये जो प्लॉट है इसको स्ट्रिप चार्ट भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ डेटा पॉइंट्स रहना। सो दैट्स हाउ यू कैन सी कि 40 के करीब इसका वो आता था। सो ये जो जिस डेट पे इसकी एक्सप्लोजन हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आपके पास उसका दिस इज़ एन आउटलायर। सो हिस्टोग्राम वर्सेस बॉक्स प्लॉट्स, अगर अपनी ये हिस्टोग्राम it shows the distribution of the data in 2 dimensions, like 2 dimensions में हिस्टोग्राम शो करती है, जिसमें x में लेट्स से वो एरिया और सॉरी एज जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, और y में आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जबकि बॉक्स प्लॉट में सिर्फ सिंगल डायमेंशन होती है। और बॉक्स प्लॉट जो है आपको समरी स्टैट्स जो है लेट्स से मीडियन, परसेंटाइल, 25th 75th, और फिर मिन मैक्स, या फिर ये उसके 1.5 FS, और ये फिर आउटलायर्स, ये मैक्स वैल्यू है, और ये मिन वैल्यू इसके उसके अंदर आ जाती है। सो बॉक्स प्लॉट सिर्फ आपको समरी स्टैट्स दिखा रहा है, और हिस्टोग्राम आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी भी उनकी जो है वो बता रहा है विद इन द रेंजेस। सो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ चैलेंजर और बॉक्स प्लॉट ऑफ चैलेंजर। सो आपको रफली यहाँ पे समरी स्टैट्स सारी के सारी इसमें आपको बॉक्स प्लॉट में नज़र आ रही हैं अलॉन्ग विद द आउटलाइन, और इसमें आपको बेसिकली उसकी शेप जो है वो नज़र आ रही है। स्कैटर प्लॉट्स, सो फाइनली हम डिस्कस करेंगे स्कैटर प्लॉट्स। सो वो स्कैटर प्लॉट्स में बेसिकली आप 2 वेरिएबल्स को हम देखेंगे। सो प्लॉट ऑफ वन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अगेंस्ट अनदर, सो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे। सो इट हेल्प्स टू गेट इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप कि एक्स और वाई का आपस का रिलेशनशिप क्या है। लेट्स से अगर इस तरह से आपके पास आ रहा है तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इस तरह आ रहा है, अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर आपके पास कोई इस तरह की शेप बन रही है। सो इस तरह का आपके पास जो है। Later in the course we'll introduce correlation, covariance as numerical summaries। ये जो correlation और covariance है वो आपको numerical summaries जो दिखाता है। अभी तक हमने कोई numerical इसका equivalent नहीं देखा relationship का between two plots, तो आगे हम correlation और covariance देखेंगे, तो वो they are the numerical descriptive stats for this relationship. So it will become important later when we learn about linear regression, और linear regression के बारे में हम जजमेंट बात करेंगे, और linear algebra में भी हम उस चीज़ को देखेंगे, और शायद स्टैट्स में भी इस चीज़ को देखें, और हो सकता है आप मशीन लर्निंग में भी आप इस चीज़ को पढ़ें अपने दूसरे कोर्स में। सो ये हमने एक प्लॉट बनाया, एक रैंडम नंबर जनरेट किए, और लेट्स से हमने y और x 2 वेरिएबल्स बनाए, x को 1 से 10 वैल्यू दी, y को कुछ रैंडम वेरिएबल्स के ज़रिए वैल्यू दे दी, और हमने ये देख लिया कोई एक
एक को दूसरे के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया तो मे बी कोई रिलेशनशिप लेट्स से कोई बना कि नहीं बना। जनरली पैटर्न्स जो स्कैटर प्लॉट्स में आपको इस तरह से नज़र आते हैं कि लेट्स से पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इट्स स्ट्रॉन्ग बट नॉन लीनियर है, इट्स नॉट लीनियर, और here it is random, कोई there is no clear relationship. So generally by pitching one variable against another आपको एक general feel of the relationship जो है वो नज़र आ जाती है. So scatter plots are good in this sense. हम इंशाल्लाह हमने अभी तक जितने भी ये प्लॉट्स देखे, जैसे यहाँ पे भी, सो ये हमने नॉर्मल बेस लाइन जो प्लॉट्स हैं आर के अंदर वो देखे, और हम लोग अभी जितना भी काम करेंगे हम जीजी प्लॉट्स में करेंगे. वाई? बिकॉज इट्स अ सिस्टम ऑफ creating graphics declaratively, creating graphics based on the grammar of graphics. मतलब ये जो भी बात, ये तो खैर जीजी प्लॉट की उस साइड से लिया है. इट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इट्सेल्फ. आप उसको सिर्फ और सिर्फ लेट्स से बताते हैं कि डेटा क्या है, व्हाट आर द एस्थेटिक्स ऑफ द डेटा, और किस तरह का आपने जो है ना ज्योमेट्रिकल जो है शेप यूज़ करनी है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसकी जो है वो जीजी प्लॉट जो है वो इट टेक्स केयर ऑफ इट. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और इंशाल्लाह हमारे आगे सारी जो इतना भी आर की प्रैक्टिस है हम लोग जो करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो सारी की सारी जीजी प्लॉट को यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है इट्स ऑल अबाउट creating visualization using R, and we'll see how visualization can be used to better understand the data, to communicate the information and show the results of analytical models maybe. So that's about it. It's the end of the lecture. So inshallah next lecture में हम लोग R के ऊपर काम करेंगे.